So we were discussing about the oxidation of alkenes. In that case, already I had explained how to form this epoxide. That is what Prileziv reaction. After that, it's another part of the oxidation. That is the diol formation. We are discussing about the oxidation of alkenes. It is oxidation of alkenes. In this, I am explaining here. First, I have done this formation of epoxide in previous lecture. Now in B part, I am explaining here diol formation. Diol formation. What is diol formation? चलिए देखते हैं यहाँ पे diol formation कैसे है. Okay. So the most popular reagent, that is what? Cold alkaline aqueous solution of potassium permanganate. Right. Reagent क्या यूज होता है diol formation में? Reagent is what? Cold alkaline, right? Potassium permanganate, KMnO4. Potassium permanganate, ठीक है. और इसी को हम लोग कहते हैं, that is what Bayer reagents. That is also called what? Bayer reagents. Normally, this reagent is used for the identification of unsaturation, means double bond or triple bond present in molecule or not. This is used. Huh? I will explain how it is used. Reagent, Bayer's reagent, right? So, sometime osmium tetraoxide. Can I write here? Osmium tetraoxide. Tetroxide, there will be OSO4. Osmium tetroxide is also used for the same purpose, right? But use this reagent is what? Limited. Use for this purpose, okay? So okay, this is what? Expensive and toxic, right? It is expensive and toxic. Okay, that's what is limited use. Its use is limited. Now, दोनों जो reagents है ना, that will give the diol. कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे बनता है, बताता हूँ मैं. हाँ, so we can say that both of these reagents, first of all, both of these reagents, मैं ऐसा लिखता हूँ इसको,
both of these reagents, right, form cyclic inorganic ester. Esters with alkenes. With alkenes which yield vicinal diol. हाँ, कैसे होगा देखो यहाँ पे, ये रिएक्शन जरा देखो, आपको समझ में आएगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सी, suppose here is the carbon, double bond carbon, right? So first of all, it treated with the MnO4 from KMnO4. It will give the intermediate. How it give the intermediate? Like this one, carbon double bond convert to the single bond, and this will be attached with this oxygen. Here is what Mn, double bond oxygen and single bond oxygen minus. This is the intermediate. इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, inorganic ester. And of hydrolysis, it will convert into the diol like this. OH, OH. Clear है? Same, osmium tetraoxide will also give this reagent, this reaction. In same manner, we can treat this alkene with the osmium tetrachloride. So osmium is what? OS, double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen, and double bond oxygen. This is the osmium tetraoxide. And in this case, osmium tetraoxide will treated with the alkene, then it form what? This double bond will approach to this carbon. So this double bond will shift here. This electron will shift here. ये सारे procedure होंगे. So what product will form here? Just imagine this product here. So again, this form this intermediate, that is called what? Inorganic ester, like O, O. Here it form what? OS, osmium, double bond oxygen, and double bond oxygen. After hydrolysis, same manner. This is what hydrolyzed base is NaHSO4, sodium hydrogen sulfide, and HOH. That is called what? Diol formation. ठीक है. अब होता क्या इसमें, एक नॉर्मल रिएक्शन पहले यहाँ पे समझ लो आप, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है. कि सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस अल्कीन like this CH3, double bond CH2, propene. So it will provide the nascent oxygen plus HOH. Will provide this alkaline KMnO4. ठीक है. So see this double bond will break. One OH will attach here and one OH will attach here. You are observing this one OH and one OH. Simple way में ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं. So CH3CH, single bond CH2, OH or OH. This is what propylene diol, right? इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर प्रोपेलिन ग्लाइकॉल या फिर प्रोपेलिन
डाइऑल, समझ में आ रहा है ना, डाइऑल 1,2-डाइऑल कह सकते हैं इसको। अब होगा क्या इसमें कि एक्चुअली KMnO4 का जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, राइट। आपको अभी शायद टाइट्रेशन वगैरह में देखने को मिलेगा पर्पल कलर ऑफ दिस KMnO4। जब KMnO4 का कलर पर्पल होता है ना बेटा, ध्यान से समझो इसको, अरे इरेजर गया कहाँ है, जस्ट मिनट, ये लो गायब हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, in this case its purple color will what, when we pass this alkene or alkyne means unsaturated hydrocarbon from this purple color KMnO4, so its color will disappear because of the formation of glycol. So this indicating what, presence of unsaturation in the molecule. So this is used as the identification of unsaturated compound, yeah, double bond unsaturated hydrocarbon. So this test is called what, बेयर टेस्ट। इसी टेस्ट को हम लोग कहते हैं बेयर टेस्ट, राइट, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था बेयर टेस्ट। अब जरा यहाँ पे देखो, ओके, सी दिस, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट है, एडिशन ऑफ OH group on both doubly bonded carbon is sin addition। अब आपको ये अच्छे से पता चल चुका है कि क्या होता है एंटी एडिशन, क्या होता है सिन एडिशन, मतलब दोनों एक ही साइड में अटैच होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, when it give the sin addition, thus cis alkene give mesoform, whereas trans give DL mixture, means racemic mixture, right। racemic mixture रिएक्शन देखिए यहाँ पे, आप ट्राई करो और खुद से बताओ मुझे ये कहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस सिस ब्यूटुइन, if I'm going to take this cis butene and it is treated with what, KMnO4 OH minus, HOH ऐड कर दिया कोल्ड कंडीशन में, तो आप बताओ मुझे प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से इसका जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, मेसोफॉर्म होगा। मेसोफॉर्म इन द सेंस व्हाट, it will equally divided in two half, right, that is what CH3 will be here, और एक ही साइड में दोनों OH रहेगा, राइट, OH OH, दैट इज अ सीन एडिशन। और आपने देखा है यहाँ पे सीन एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कैसा है, मेसोफॉर्म, क्योंकि इसको दोनों को हाफ डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, राइट ना, हाफ पार्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेसोफॉर्म, मेसो ग्रुप, राइट। बट अगर यहीं पे मैंने ट्रांस लिया, इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रांस, देन व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर,
अब बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। CH3H डबल बॉन्ड CH CH3. All of you give me the product. What product will get here? क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट यहाँ पे? DL का मिक्सचर मिलने वाला है, मतलब एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो का मिक्सचर मिलेगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे OH जो हो रहेंगे ना अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट अटैच हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ले लिया OH H, और एक OH यहाँ पे और एक OH H यहाँ पे। तो इसका मेजो, इसका जो दूसरा होगा क्या होगा? इनएंशियोमर होगा। अगर ये डी ले तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज ये डी और ये कैसा हो गया? एल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल और डी हो जाएगा, राइट ना, अपोजिट। दैट इज कन्वर्ट इनएंशियोमर्स। ये समझ में आ गया? नोट डाउन करो इसको। आगे चलते हैं। ओके, वेरी गुड। जस्ट मिनट, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप नोट डाउन करिए इसको। मैं दूसरा पेज लेता हूँ अभी। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। अभी दिख रहा है ना? यस सर। ओके, चलिए। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। अगर मैंने ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन किया तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, बताओ मुझे। जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH, इसका पहला जो रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, किससे करा रहे हैं? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और यहाँ पे है पायरिडीन। पायरिडीन। दूसरा यहाँ पे जो है Na2SO4HOH। ठीक है, या फिर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे NaHSO3 और HOH। सेकेंड हाइड्रोलाइसिस दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो अपने को क्या मिलेगा? ग्लाइकॉल। जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन है वहां पे OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, दैट्स ऑल। दिस इज द रिएक्शन, राइट? क्लियर है? ओके। सम टाइम ये देखो, ये भी डाइऑल देता है। जैसे एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखूं CH डबल बॉन्ड CH एंड R, when it is treated with the I2 and silver acetate, right? It is weighted, weight, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे देखिए ये, और एक और रिएजेंट मैं यहाँ पे ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने पहला,
I2 CH3COOAG ड्राई, दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस आएगा। यहां पे ले लिया मैंने HOH, तो आप देख रहे हो कि दोनों के कंडीशन में क्या डिफरेंस है, जस्ट ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये वेटेड है और यहाँ पे कैसा ये ड्राई है। तो प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट गिव दिस ड्राई एंड वेटेड, तो वेटेड जो होगा वो क्या होगा, सिस डाइऑल। मतलब यहाँ पे जो हो गया बेटा ना, वो कैसा हो गया, सीन एडिशन हो गया। लेकिन अगर ये ड्राई है तो यहाँ पे कैसा फॉर्म होगा प्रोडक्ट, RCH ये हो गया यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या हो गया OH। इसे हम कहेंगे सिस डाइऑल और इसे कहेंगे ट्रांस डाइऑल। तो ये सारे रिएक्शंस हो गए डाइऑल फॉर्मेशन के, राइट। अब मुझे जरा ये प्रोडक्ट बता के बना के बताओ मुझे, क्या प्रोडक्ट निकलने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे। So can you scroll up for a second? या दिस वन, Yes, sir. Done, sir. ओके, Sir, 1 minute. हाँ Done, sir. ओके। See, my question is what? Just take care about this and tell me the answer. I'm asking here, what product will form here? डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बताओ मुझे, आप क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। Here I'm taking this X and it give product like this. ये ऐसा कुछ मिल गया, OH और OH, ठीक है। What is this X? X क्या होगा, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। X is A, KMnO4, HOH, OH minus, B, OS, O4, second, NaSSO3H, C, I2, CH3COO, AG, weight, and D, all of these. What will be the answer? आंसर क्या आएगा इसका,
यस देखो, ऑल ऑफ दीज आर गिविंग व्हाट, सिन एडिशन, तो सीसी बनाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ऐसा हो जाता ना, इफ आई गेट दिस प्रोडक्ट लाइक ऐसा कुछ अगर बनता है यहाँ पे, यहाँ पे अगर सपोज ये प्रोडक्ट दिखता मुझे ऐसा मिल जाता है, ऐसा ये OH और ये यहाँ पे मिलता है ऐसा OH। अब ये दोनों अपोजिट साइड में ट्रांसफॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, ड्राई, राइट। ओनली दिस I2 and a silver acetate give the different type of product. Weighted is give the cis and dries give the trans. Otherwise rest of all this diol formation reagent is give the cis addition. Clear है? चलिए Yes, sir. तो यहाँ पे लिख देंगे I2 CaCOOAg dry HOH, then we get this product। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड। आगे का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। यस, अल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड लाइक अल्डिहाइड एंड कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो नेक्स्ट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चलिए देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स into carbonyl compound। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेकर प्रोसेस। हाँ, मैं नीचे लिखता हूं इसको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेकर प्रोसेस। देखो, एक सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जो आप पढ़ रहे हो हाइड्रोकार्बन और बाकी के चैप्टर्स ना, तो एक छोटा सा नोटबुक आप बना लो, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेक अ सेपरेट नोट, और उसमें सारे नेम रिएक्शंस लिखते रहो। जैसे अभी यहाँ पे हो गया कैसा, वेकर प्रोसेस, और इसके पहले हमने देखा था कौन सा, बेयर टेस्ट, राइट। तो जितने भी ये नेम रिएक्शंस आ रहे हैं ना, वो सारे नेम रिएक्शंस एक जगह पे कलेक्टिवली लिखते रहो, इससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, राइट। इससे क्या होगा कि आप फाइनली जब सारे रिएक्शंस मीन सारे चैप्टर जब हो जाएंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कितने नेम रिएक्शंस है, क्योंकि मोस्टली नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो नेम रिएक्शंस का एक आपके पास पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। सिर्फ अगर सपोज टाइम नहीं मिला, पूरा देखने का नहीं मिला, एटलीस्ट नेम रिएक्शन देख के चले गए ना, इसमें क्या कन्वर्जन हो रहा है, तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। तो नेम रिएक्शंस में आपको रिएजेंट किससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं वेकर प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, so oxidation of ethylene monosubstituted and 1,2 disubstituted alkenes into carbonyl compound in presence of PdCl2 and HOH, air and Cu2Cl2, that is what conversion, these reagents are involved। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन, तो आपको समझ में आएगा। सी आई एम राइटिंग हियर, जैसे ये लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट, इथाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूज किया रिएजेंट PdCl2 HOH, राइट। यहाँ पे लिया एयर Cl2 Cl2 Cu2 Cl2, तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH में। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेकर प्रोसेस, राइट ना। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड व्हाट, वेकर प्रोसेस, दिस रिएजेंट इज व्हाट, वेकर रिएजेंट। समझ में आया ये, राइट।
अगर सपोज अनसिमेट्रिकल लिया, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये तो सिमेट्रिकल था, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन more hindrance olefins carbon into carbonyl group. राइट कैसे देखिए, CH3 CH2 CH double bond CH2, it is treated PdCl2 HOH air and Cu2Cl2. सुनो अभी what they are saying कि कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो कहां पे फॉर्म होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे, यहाँ पे तो दोनों सेम था ना, CH2 तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विल फॉर्म हियर, but in this case unsymmetrical alkene where this carbon double bond oxygen will form. So in unsymmetrical alkene more hindered olefins carbon into the carbonyl group, right? यहाँ पे more hindered मतलब ये ज्यादा हिंड्रेंट है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होगा, तो our product will be what? CH3 CH2 C double bond O CH3 means what? It is ketone, right? Yes, sir. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, ऑक्सीडेशन इस पोजीशन पे हो रहा है, राइट ना? oxidation at this carbon, right? Because it is more hindered. ठीक है, अच्छा अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया तब क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड आ गया मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3, अब इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग PdCl2HOH and here air Cu2Cl2, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, कौन सा कार्बन मोर हिंड्रेड है, कौन सा लेस हिंड्रेड? देखो if compound has what more than one double bond, right, then oxidation takes place on that double bond which has less hindered. जो लेस हिंड्रेड होगा वो वहां पे डबल, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, जब सिंगल डबल बॉन्ड है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा जहां पे कार्बन कैसा है, ज्यादा हिंड्रेड है, more hindered carbon will oxidize. But in case of more than one double bond present, then oxidation takes place on that carbon which is what? Less hindered. मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसा है, ये ज्यादा हिंडेड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसा है, लेस हिंडेड है। अब इसमें भी क्वेश्चन उठता है कि इस डबल बॉन्ड पे और इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कौन से कार्बन पे होगा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे दो चॉइस अपने पास आ गए। फर्स्ट वन इज व्हाट, हियर इज द टू डबल बॉन्ड 1 and 2, तो वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो पहला रूल ये है कि जहां पे लेस हिंड्रेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ठीक है ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा, राइट, दिस इज व्हाट लेस हिंड्रेड, लेस हिंड्रेड हो गया, चलिए ठीक है। ओ
तो पहला आपको ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लेस एंडेड है। अब दूसरी चीज हमें ये सिलेक्ट करनी है कि इन दोनों कार्बन में कौन से कार्बन पे होगा, तो जो कार्बन ज्यादा हिंडेड होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, पहले हमें डबल बॉन्ड सिलेक्ट करना है। दिस डबल बॉन्ड इज व्हाट मोर हिंडर्ड, और यहाँ पे लेस हिंडेड है, तो लेस हिंडेड पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट। और उसमें से भी कौन से कार्बन पे होगा जो ज्यादा हिंडेड होगा। तो दैट इज द रूल। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है अपने पास। सो फाइनली वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2CH, डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH। क्लियर है। राइट, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है क्लीवेज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अभी तक तो कोई भी डबल बॉन्ड डबल मतलब पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा था, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मींस व्हाट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विल ब्रेक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। फर्स्ट यू नोट डाउन दिस पार्ट। ओके, नाउ सी दिस ऑक्सीडेशन ऑफ या ऑक्सीडेशन विथ क्लीवेज, या इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। हाँ, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। चलिए देखते हैं। ए क्लीवेज विथ हॉट बेसिक के MnO4। के MnO4 हॉट बेसिक के MnO4, ठीक है। देखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ना वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है अल्कीन का। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है।
इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 OH माइनस और हीट का सिंबल। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, दोनों एसिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होने जा रहे हैं और यहाँ पे भी बनेगा क्या, ये COOH पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बनेगा अपने पास, CH3 COOH and COOH. So you are observing here but2 convert into the 2 mole of the acetic acid. But2 convert to the acetic acid. Acetic acid. Now note what is important note here. Terminal alkene gives formic acid. Formic acid. ठीक है, which further oxidize to give carbon dioxide and water. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे अब कैसा हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर टर्मिनल अल्कीन है मींस लास्ट में अल्कीन प्रेजेंट है, देन रिएक्शन विल बी व्हाट, सी दिस एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHH, ये हो गया ना टर्मिनल अल्कीन। अब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग, तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 COOH plus HCOOH, formic acid. And this formic acid, as I told you, as I say here, formic acid further oxidized and it convert into the carbon dioxide and H2O in drastic condition. Got it? अब यहाँ पे देखो, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, बहुत ध्यान से एक एक रिएक्शन देखते रहो यहाँ पे। हाँ, अब सपोज कोई ऐसा अल्कीन है जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन जो है ना, वो एक जो कार्बन है वो डबल मींस 2 सब्स्टिट्यूटेड है और एक जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो कैसा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो डबली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा ना, या डबली बॉन्डेड कार्बन जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द कीटोन। अगर 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। ठीक है, रिएक्शन देखो, इसको डैश कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपने को, C डबल बॉन्ड O and here we'll get what, RCOH. This is our product. क्या समझ में आ गया आपको? Got it? ये समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. गुड। चलिए अब बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। मैं एक रिएक्शन देता हूँ आपको, यू टेल मी व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर। देखो यहाँ पे बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन, सोच के बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने को। यहाँ पे
CH3 C CH3 double bond CH C6H5. Now it is treated with KMnO4, ठीक है, और यहां पे लेते हैं हम लोग सोडियम आयोडेट। इसके प्रेजेंटेशन में क्या होगा? सेम जैसा रिजल्ट हमें ऊपर मिल रहा था वैसे ही यहाँ पे भी रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट होगा? एसिड में, और ये किसमें होगा? कीटोन में, राइट? दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? एसिड। दिस ग्रुप फॉर्म व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस ग्रुप विल फॉर्म व्हाट? कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने पास। वी गेट दिस प्रोडक्ट लाइक CH3 प्लस C6H5 COH, राइट है? ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिलता है जो अपना स्टार्टिंग में लिया था वही। इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिक नाम देते हैं इस रिएजेंट को। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड व्हाट? ल्यूमिएक्स रिएजेंट। हाँ, ल्यूमिएक्स रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे cleavage with OSO4 NaIO4। इसको भी हम कहते हैं नोन एज, जैसे यहां पे कह रहे थे वही सेम यहां पे भी है, दैट इज व्हाट? रिएजेंट, ल्यूमिएक्स रिएजेंट। यहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? सेम जो प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा था वही यहां पे मिलेगा। इफ आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ द रिएजेंट लाइक दैट, अल्कीन डबल बॉन्ड, एक जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरा जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। इस केस में इफ आई एम टेकिंग दिस ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड as well as NaIO4, then we get this what? Disubstituted group will give the ketone like this what? R C double bond OR plus it give what? R dash CHO. This is the difference. It is not directly converted into the acid, it's converted into the what? Aldehyde. ठीक है, this will convert it to the what? Aldehyde. अगर ऐसा कुछ ग्रुप लिया मैंने तब क्या मिलेगा? अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपने को?
CH2. What product will get here? या फिर ये भी ले सकते हो आप। हाँ, सब लोग मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या मिलने वाला है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट देगा यहाँ पे। और फिर एड दिस प्रोडक्ट, या फिर इसका मैं ऐसा कहता हूं इसको, चलिए दोनों जगह पे प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या मिलने वाला है ना? क्या सेम मिलेगा या फिर डिफरेंट मिलेगा? एनीवन जस्ट टेल मी प्रोडक्ट। कोई बोलेगा? देखो यहाँ पे बेटा, देखो सारे रिएजेंट पे ध्यान दो। पहला यहाँ पे जो बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट में वो क्या बनेगा? कीटोन तो बनेगा, डेफिनेटली कीटोन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कीटोन हम बना देते हैं। और ये जो है ना वो क्या बनाएगा? फॉर्मिक एसिड। जब टर्मिनल कार्बन होता है क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। बट हमें पता है कि फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। पढ़ा है ना आपने? तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ये बना, एसीटोन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर। फाइनल प्रोडक्ट जब भी पूछेगा तो यही बनेगा आपका। हाँ, दैट इज व्हाट, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बट यहाँ पे जब रिएक्शन कराया ना, हमें पता है कि जो OS NaIO4 में रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड में नहीं अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? कीटोन तो बनेगा, एसीटोन बनेगा एज इट इज, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बना? अल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा फटाक से। हाँ? इसकी तरह। क्या समझा आपको? राइट? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। Listen what I'm saying here. See, पहले ऊपर के कंडीशन देख लो आप। ये जो केमेनोफोर NaIO4 है या फिर केमेनोफोर OH माइनस और हीट है, ये दोनों रिएजेंट ना, ये और ये सीरीज, ये रिएजेंट और ये रिएजेंट, दोनों रिएजेंट के जो प्रोडक्ट होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल इन द सेंस, अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और उस पर दो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा और दूसरा वाला एसिड में कन्वर्ट होगा। दूसरा कंडीशन थी ये था कि अगर ये टर्मिनल अल्कीन है, टर्मिनल मींस लास्ट में अगर अल्कीन है,
तो ये जो लास्ट वाला अल्कीन होता है ना, जो लास्ट वाला कार्बन होता है, वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। बाकी ये तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में होगा। अब सुनो मेरी बात, दूसरा कंडीशन मैं ये बता रहा हूं यहाँ पे कि ऐसा अल्काइल ग्रुप, जो अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखो जरा ध्यान से, ये जो रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और सोडियम आयोडेट, इसके प्रेजेंटेशन में ना ऑक्सीडेशन जब डबल बॉन्ड का होगा तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, और जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में, एसिड में नहीं अल्डिहाइड में। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये रिएजेंट है और इस रिएजेंट का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। पहला तो कराया KMnO4 NaIO4, या फिर ये दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट देते हैं। तो ये जो कार्बन है जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, कार्बन है अल्काइल ग्रुप से, वो तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया एसीटोन। जो टर्मिनल कार्बन है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे है, तो ये तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा, जैसा प्रीवियसली मैंने बताया। और ये फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। लेकिन ये रिएजेंट जो है ना, वो इसको तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, बट इसको एसिड में नहीं अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, जो एज इट इज रहेगा। So in this condition we get the acetone and the formaldehyde. In this condition we get this what? Acetone and carbon dioxide water. Got it? Yes. Very good. चलिए, अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ओजोन और ओजोनोलाइसिस। और ये रिएक्शन मैंने आपको मैकेनिज्म में भी बताया था, फिर से मैं बता देता हूं आपको। ओजोनोलाइसिस, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ओजोन एंड ओजोनोलाइसिस। ओके सॉरी, सी दिस एडिशन ऑफ ओजोन एंड ओजोनोलाइसिस। तो आपको पता है कि ओजोन का एडिशन कैसे होता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो देखते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे। हाँ, इसको कहते हैं 1,3 डाइपोलर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे जो ओजोन ऐड होता है ना अल्कीन से, वो कैसा होता है, 1,3 डाइपोलर एडिशन होता है, राइट। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट के बाद ओजोनाइड बनाता है, और ओजोनाइड का फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है अल्डिहाइड और कीटोन। कैसे बनता है जरा देखो यहाँ पे, रिएक्शन में बता रहा हूँ यहाँ पे। आर डबल बॉन्ड CH आर डैश। ठीक है, इसका रिएक्शन करा दिया मैंने O3 से, Cl2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, देखिए दो टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये बना R डैश O
O and O, ठीक है। इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट में क्या बनने वाला है देखो, R R O C H R O O and O, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड, ठीक है। अब ओजोनाइड जो होता है ना, वो कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। जस्ट मिनट, हाँ, ओके। Ozonide will oxidize and convert into the aldehyde or ketone carbonyl group. That is what, see this A reaction with oxidizing agent, ओजोनाइड का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। कैसे मिलने वाला है देखो यहाँ पे थोड़ा, ये मैं डायरेक्टली वन स्टेप भी बता सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, जरा देखो। यहाँ पे बना है R R O C, अब देखो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास, रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएजेंट्स है Ag2O, दूसरा तीसरा यहाँ पे RCOOH, कोई भी रीजन के लिए यहाँ पे। ये क्या बन रहा है अपने पास, RC डबल बॉन्ड OR, ये तो बन गया कीटोन। और यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा अपने पास, R' C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड और कीटोन, अगर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो ये बन जाएगा एसिड। ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको रिएक्शन को लिखने जाएं, तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे आप देखोगे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया, दैट इज द ओजोनोलाइसिस। सिंपल रिएक्शन अगर आपको देखना है, मैकेनिज्म के बारे में नहीं जानना है, ये सारी चीजें नहीं समझनी है, तो सिंपल जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे ब्रेक करके दोनों जगह पे ऑक्सीजन लगा दो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया शॉर्ट कटिंग, ठीक है। जैसे मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये नोट डाउन करो, मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे सिंपल रिएक्शन मैंने करा दिया यहाँ पे, अ, ये CH3C
CH3 CH O3 के प्रेजेंटेशन में, और फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस एसिड, ये बन गया प्रोडक्ट, राइट। यहाँ पे रिडक्शन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओजोनाइड का ऑक्सीडेशन किया मैंने, अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो नाउ रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, ओजोनाइड को रिड्यूस करने पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो देखते हैं। जैसे ये रिएक्शन लिया तो मैंने आर आर डबल बॉन्ड CH R डैश, तो पहले इसको तो ओजोनोलाइसिस मींस ओजोनाइड करा देते हैं इसको, आर आर, यहाँ पे O बनता है CR डैश H, CH R डैश, हाँ, एंड हियर इज व्हाट O एंड O। ठीक है, इसका रिएक्शन देखो कैसे करने वाले हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अदरवाइज NaBH4, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है अपने को? देखिए प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O R प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH। बहुत ध्यान से देखना, और ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें? डेफिनेटली जो कीटोन होता है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कन्वर्ट होता है किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में, और जो अल्डिहाइड होता है कन्वर्ट होता है किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में। तो इट विल गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए ये सब रिएक्शन का खेल है, जस्ट रिएजेंट चेंज करो, प्रोडक्ट चेंज। सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। सोचो जहां पे ये ओजोन से रिएक्ट करके अल्डिहाइड कीटोन और एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, वहीं पे ओजोन से रिएक्ट करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज जो ओजोनाइड बना ना, इस ओजोनाइड का हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या फिर रिडक्शन कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा, रिडक्शन कर दिया तो यहाँ पे रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप फिर से रिड्यूस हो जाएंगे और बन जाएगा अल्कोहल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। These are what? Strong reducing agent. Convert carbonyl group to alcohol. लेकिन बेटा यहीं पे देखो, यहीं पे रिएक्शन में ट्विस्ट आता है। अब अगर रिएजेंट मैंने चेंज कर दिया, सपोज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैं यहां पे ही लिखता हूं, यहां पे ही लिखता हूं, यहां पे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब सपोज ये रिएक्शन यहां से ओजोनाइड में रिड्यूस कर रहा हूं इसको, आई एम गोइंग टू रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट?
Zn अल्कोहल और H2 Ni PS3P। ये जो है ना, ये सारे रिएजेंट कैसे हैं? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना स्ट्रांग नहीं जितना वो है, राइट? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग नहीं है, रिएजेंट नहीं है। दीज रिएजेंट these reagents सुनो, do not convert carbonyl to अल्कोहल। कार्बोनिल को अल्कोहल में ये कन्वर्ट नहीं करेंगे, राइट? दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग लाइक दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सो इट विल फॉर्म ओनली व्हाट? कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे सिर्फ हमें कीटोन और अल्डिहाइड मिल जाएगा, वो फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इट विल नॉट फर्दर रिड्यूस। तो रिएजेंट आपको ध्यान देना है क्या है, ठीक है? अब मैं बताने जा रहा हूँ ओजोनोलाइसिस। एक्चुअल ओजोनोलाइसिस कैसा और क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। यू नोट डाउन दिस पार्ट फर्स्ट। चलिए हो गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। ओजोनोलाइसिस, हाँ, देखो ओजोनोलाइसिस दो टाइप के होते हैं, एक इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इन एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला हम लोग देखने जाते हैं रिडक्टिव ऑफ ओजोनोलाइसिस, हाँ, और रिडक्टिव वर्कअप। देखते क्या है, ठीक है? तो जो ओजोनोइड बनता है ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करने जा रहे हैं अभी हम लोग, हाँ। कैसे होगा जरा देखो, यहाँ पर रिएक्शन देखो।
समझो जरा, रिएक्शन समझो। आर आर डैश, तो पहला तो ले लिया मैंने O3, ठीक है। O3 ले लिया तो यहाँ पे ओजोनॉइड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे CH2Cl दिया रहेगा ऐसा कभी कभी, और -78 केल्विन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो सिर्फ ओजोन दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बन जाएगा। अच्छा देखो, अब इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे। हाइड्रोलाइसिस मीन्स व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड Zn। आपको पता है Zn का रोल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग कैसा कर रहे हैं? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, मतलब पहले मैंने ओजोन का ऐड किया, ओजोनॉइड बना, अब इस ओजोनॉइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो डेफिनेटली एल्डिहाइड और कीटोन तो बन जाएगा यहाँ पे। प्लस इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, दैट इज व्हाट? H2O2 पेरोक्साइड। अब ये जो H2O2 है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फटाक से इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसको क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Zn। Zn का रोल यही होता है, इन प्रेजेंस ऑफ Zn दिस विल बी कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस H2O, और ये जो इसका ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ऐसा सिंपल सा ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड बन गया, राइट ना? कीटोन और ये बन गया। देखो ये नहीं कि सिर्फ ये 11th का अल्कीन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, यही सेम चीजें आपको 12th में एल्डिहाइड और कीटोन में भी है। So pay attention about this and just consider these reactions, how this aldehyde and ketone form from this unsaturated hydrocarbon by ozonolysis. So this ozonolysis is first one is what? Reductive ozonolysis. Reductive in the sense what? After formation of ozonoid, it will go for the hydrolysis. And hydrolysis in presence of what? Reducing agent, Zn. So formation of peroxide after hydrolysis, when aldehyde ketone form and peroxide will form, peroxide can oxidize this aldehyde and ketone into the acid. But due to presence of Zn, it will prevent, and Zn will consume this peroxide into the ZnO and H2O. Clear है? बोलो। Yes, sir. Yes, good. Very good. चलिए next one. ठीक है, तो आप बनाओ, मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा अगर मैंने ऐसा कुछ रिएजेंट लिख दिया यहाँ पे। बताइए क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, उसका नाम क्या होगा? क्या प्रोडक्ट मिलने वाला अपने को बेटा? टेल मी दिस फास्ट।
क्या बना प्रोडक्ट? देखो कभी भी ये ओजोन यहाँ पे ऐड होगा, मैंने बताया ना आपको, ये जस्ट ब्रेक कर देने का, सिंपल सी बात है, ये ब्रेक कर देने का डबल बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पे जो कार्बन है ना, वो बना लिया क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दैट इज प्रोडक्ट, राइट है। कार्बन उतने ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको मैं ओपनली लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, ये देखो यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, ओ और वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज व्हाट, CH2 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 एंड C, यही तो बना। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 डाइऑल, डाइअल, राइट है क्या, समझ में आ रहा है आपको? हम्म, जहां पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां पे ब्रेक करके दो ऑक्सीजन अटैच कर देने का दोनों कार्बन पे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ट्रिक है इसका, क्लियर है? किसी की आवाज नहीं आ रही है? यस, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस के बारे में वो देखते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन इन अल्किन्स एंड प्रोडक्ट। शुड बी सेम, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर शॉर्टकट यहाँ पे लिख दिया C6H12, इसका ओजोनोलाइसिस करा दो, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है अपने को, यहाँ पे मिलेगा 2 into CH3CH2CH2, ये तो मिला। तो 2 into 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पे भी कार्बन कितने बेटा, 6, और यहाँ पे भी कार्बन कितने, 6, दैट्स ऑल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट, connects both carbonyl carbon by double bond with the removal of oxygen to get alkene। देखिए कैसे, अगर दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया,
ये आ रहा है समझ में? दोनों को कनेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या मिल जाएगा? सेम अल्कीन मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट, if product is dicarbonyl compound and number of carbon is product is same, then reactant will be cycloalkene. बात आई समझ में? If the product in dicarbonyl compound and number of carbon in reagent and product is what same, then reactant will be what? Cycloalkene. जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे। अब इसका ओजोनोलाइसिस कर दिया मैंने, तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने पास? 1 2 3 4 5 6, राइट ना? यहाँ पे क्या हो गया? CHO CHO, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसका है, दैट्स ऑल। फोर्थ वन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन पॉलीइंस। पॉलीइंस जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। सपोज देखो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जरा समझो इसको। आउट ऑफ n+1 products, 2 products will be always be monocarbonyl. Compound and remaining products will be dicarbonyl. कंपाउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, रिएक्शन ले रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH
then CH double bond CH, CH2 CH double bond CH2. How many double bonds here? Number of double bonds. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे number of double bond is equal to what? One, two, three, four. Number of double bond 4. So number of product कितने बनेंगे? Five. N plus 1 ना? That will be 5. Out of 5, two products will be monocarbonyl, right? And remaining 3 will be dicarbonyl, huh? डाइकार्बोनिल। समझो कैसे? इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा कैसे होगा? देखो यहाँ पे, ये मैं लिख रहा हूँ फिर से यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH double bond CH, here is the CH2 and CH double bond CH2। ठीक है, ब्रेकिंग कहाँ कहाँ पे होगा, ओजोन कहाँ कहाँ पे ऐड हो रहा है? देखो यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक किया, O और O ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्रेक किया, O और O ऐड कर दिया, आ रहा समझे? यहाँ पे ब्रेक कर दिया, O और O ऐड कर दिया, यहाँ पे ब्रेक किया, O और O ऐड कर दिया, राइट है? देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसके अकॉर्डिंगली व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? CH3 CHO बन गया, एक बन गया ना मोनोकार्बोनाइल ग्रुप, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे। दूसरा क्या बनने वाला है यहाँ पे? देखो ये तो प्रोडक्ट एक ही साथ बनेगा ना, समझो यहाँ पे OHC CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बन गया। प्लस अब यहाँ पे ये क्या बनने वाला है? देखो OHC एंड CHO, एक प्रोडक्ट ये बन गया। प्लस ये क्या बनने वाला है यहाँ पे? देखते रहो ध्यान से, हाँ, OHC CH2 CHO प्लस क्या बना? CH2। कितने प्रोडक्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे बन गए? सॉरी, कहीं पे कुछ मिस्टेक किया मैंने। एक मिनट एक मिनट। ये बना CH3 CHO, फिर CHO CHO, ठीक है, फिर ये CHO CHO, फिर ये बन गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 प्रोडक्ट है ना। देखो 1 2 3 4 एंड 5 प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें देखो ये और ये कैसा है? मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें एक एक ऑक्सीजन है। बाकी ये और ये कैसे है? डाई कार्बोनाइल ग्रुप है, राइट? तो दिस इज द रिएक्शन। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई आपको? चलिए अभी दूसरा लेक्चर आपका ना, यस, हाँ चलिए फिर अभी यहाँ पे बंद करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। Thank you. चलिए बाय।